Hello friends, welcome to our Tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 13th of April 2021 related current affairs. But before starting this, let us we talk about some important news headlines related to the 13th of April 2021. Guys, the first important news headline of today's is Punjab appoints Sonu Sood as the state's COVID vaccinator ambassador. Bollywood actor Sonu Sood has been made the brand ambassador of Punjab's anti-coronavirus vaccination program. During the coronavirus included lockdown last year, the actor had helped many migrants reach their home state. So, पंजाब ने बनाया है सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर। जैसा कि हमें पता है कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और हमें यह भी पता है कि पिछले साल कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान अभिनेता ने प्रवासियों को अपने गृह राज्यों में पहुंचने में मदद भी की थी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज गुनीत मोंगा conferred with Knight of the Orders of Arts and Letters honor. Acclaimed filmmaker Guneet Monga to be conferred with honor of the Knight of the Order of Arts and Letters, Chevalier Dans Award Arts des Letters. It is the second highest civilian French honor and has earlier been awarded to big Hollywood names like Meryl Streep, Leonardo DiCaprio and Bruce Willis. हमें पता होना चाहिए कि गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इसे फ्रेंच में चेवेलियर डांस आई ऑर्डरेस आर्ट्स एट्स डेस लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है और इससे पहले इसे मेरिल स्ट्रिप, लियोनार्डो ड्रैकप्रियो और ब्रूस विलियस जैसे बड़े हॉलीवुड नामों से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। इंडिया से गुनीत मोंगा जी को यह पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज यूनाइटेड अमीरात और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स named its first female astronaut. The United Arab Emirates named the next two astronauts in its space program on 10th of April, including the country's first female astronaut, Nora Al-Matrish is the UAE's first female astronaut. The announcement gave no biographical information about her on her male counterpart, Mohammed Al-Molla. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने घोषित किया है अपनी पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्ष यात्री का नाम। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थी। नोरा अल मतरिश यूएई की पहली अंतरिक्ष यात्री है। घोषणा के उनके पुरुष समक्ष मोहम्मद अल मुल्ला के बारे में कोई जीवन संबंधी जानकारी नहीं दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज इंडियन बिजनेस टाइकून यूसुफ अली एमए गेट्स टॉप सिविलियन अवार्ड इन यूएई। Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has honored Indian origin businessman Yusuf Ali MA and 11 other individuals with Abu Dhabi's top civilian award for their noble and charitable contribution to the community. The prestigious award was given to Mr. Yusuf Ali, who has been born in Kerala, for his outstanding contribution to Abu Dhabi's business, industry and support to various philanthropic इनिशिएटिव्स। यूएई में भारतीय बिजनेस टाइकून एमए यूसुफ अली को मिला है शीर्ष नागरिक पुरस्कार।
हमें पता होना चाहिए कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने भारत मूल के व्यवसाय एम ए यूसुफ अली और 11 अन्य व्यक्तियों को समुदाय में उनके महान और धार्मिक योगदान के लिए अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अबू धाबी के व्यापार, उद्योग और विभिन्न परोपकारी पहलुओं में सहयोग के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल में जन्मे श्री यूसुफ अली को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। So guys, now let us we talk about 13th of April 2021 related current affairs. So today's first question is, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? Who became the first female astronaut of the United Arab Emirates or UAE? So answer is नौरा अल मतरिश। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि नौरा अल मतरिश is the first female astronaut of UAE. Next question, question number 2 is, किस पेमेंट बैंक ने रिवॉर्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है? विच पेमेंट बैंक लॉन्चेस अवार्ड 123 सेविंग्स अकाउंट? सो आंसर इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, रिवॉर्ड 123 सेविंग अकाउंट इज रिलेटेड टू एयरटेल पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? When did Indian Council of Cultural Relations or ICCR celebrate its foundation day? So answer is 9th of April 2021. Important है, हमें याद रखना है। Next question, question number 4 is, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? Where was the खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस was inaugurated? So answer is श्रीनगर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल श्रीनगर में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, भारत में किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? विथ विच कंट्री इन इंडिया साइंड एन एयर बबल एग्रीमेंट? सो आंसर इज श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि भारत के साथ श्रीलंका ने एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? When was National Safe Motherhood Day was celebrated? So answer is 11th of April. Important है, हमने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? What is the theme of National Safe Maternity Day 2021? So answer is stay at home during coronavirus, keep mother and newborn safe from coronavirus. I repeat, stay at home during coronavirus, keep mother and newborn safe from coronavirus. Next question, question number 8 is, पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से किसे सम्मानित किया गया है? Who was awarded the Golden Globe Honors Foundation for Environment Protection? So answer is अक्षय कुमार। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि अक्षय कुमार वॉज अवॉर्डेड फॉर द गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? When was the International Day of Human Space Flight celebrated? So answer is 12th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, IPL और इंडियन प्रो लीग में 100वीं और शताब्दी जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी है? Which became the third team to register 100th win in IPL? So answer is कोलकाता नाइट राइडर्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, कोलकाता नाइट राइडर्स भारत की तीसरी ऐसी टीम है जिसने IPL में 100वीं बार जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज, अमेरिका ने किस देश के साथ बालिकतन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? With which country did the US organized a military exercise? So answer is Philippines. Important है, हमें याद रखना है, अमेरिका और फिलीपींस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज, किस देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थॉमस क्लार्क को 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ विच कंट्री रामसे क्लार्क डाइड एट द एज ऑफ 93? सो आंसर इज अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि रामसे क्लार्क जो थे वो अटॉर्नी जनरल थे अमेरिका राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज,
ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स और बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? Who was voted the best film at the British Academy Film Awards BAFTA? So answer is Nomadland. Important है, हमें याद रखना है. Nomadland is the film awarded by BAFTA Awards. Next question, question number 14 is किसने अगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है? Who won the Masters tournament at Augusta National Golf Club? So answer is हिदेकी मात्सुयुमा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि हिदेकी मात्सुयुमा ने अगस्त नेशनल गोल्फ क्लब टूर्नामेंट जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीति साझेदारी के लिए समझौता किया है? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट फॉर स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप इन द वाटर सेक्टर? सो आंसर इज नीदरलैंड्स. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. इंडिया अलॉन्ग विथ नीदरलैंड signed an agreement for strategy partnership in water sector. Next question, question number 16 is ITBP की किस खिलाड़ी ने जर्मनी आयोजित मुक्केबाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? Which ITBP player won a golden medal in the boxing world cup held in Germany? So answer is मनीषा मौन. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि मनीषा मौन ने गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हेल्ड इन जर्मनी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज PMMY के तहत कितने प्रतिशत ऋण महिला उद्यमी को दिया गया है? What percentage of loans given to women entrepreneurs under PMMY? So answer is 68%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 68% जो है ऋण महिलाओं को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज किस राज्य में स्थित चिल्का झील में डॉल्फिन की संख्या दुगनी हुई है? हमें पता होना चाहिए कि सॉल्ट वाटर लेक चिल्का कहाँ स्थित है जिसमें डॉल्फिन की संख्या दुगनी हुई है? सो विच स्टेट हैज डबल द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन चिल्का लेक? सो आंसर इज स्टेट ओडिशा. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है चिल्का लेक जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है एंड कैपिटल ऑफ स्टेट ओडिशा इज भुवनेश्वर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज भारत के संयुक्त राज्य के आतंकवाद विरोध अभ्यास में कितने डॉलर का योगदान दिया गया है? How many dollars did India contributed to the United Nations anti-terrorism exercise? So answer is $5 lakh. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 20 is किस देश में 42 साल बाद लॉ सॉफ्रियर ज्वालामुखी फटा है? In which country after 42 years the लॉ सॉफ्रियर volcano has erupted? So answer is Iceland. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है लॉ सॉफ्रियर वॉल्केनो आइसलैंड से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु वाज अवॉर्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड? सो आंसर इज गुनीत मोंगा. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि फ्रेंच का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये अवार्ड है द नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड, जिससे भारत के प्रथम जो है गुनीत मोंगा एक्ट्रेस को दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज वैश्विक विद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? विच इंस्टीट्यूट वॉज द टॉप रैंक्ड इन द एकेडमी रैंकिंग्स ऑफ ग्लोबल स्कूल्स? सो आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IIS बेंगलुरु जो है इसे टॉप किया है इन द एकेडमिक रैंकिंग्स ऑफ ग्लोबल स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वर्ल्ड पार्किंसंस डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 11th of April. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है पार्किंसंस डिसीज जैसा कि हमें पता है इसका दिवस जो है 11 अप्रैल को मनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज लॉन्च्ड पुस्तक माय मदर माय हीरो के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक माय मदर माय हीरो? सो आंसर इज अच्युता सामंत. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है अच्युता सामंत इज द राइटर ऑफ द बुक माय मदर माय हीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज ICCR ने किस नाम से दुनिया का पहला संस्कृत शिक्षण ऐप लॉन्च किया है? ICCR launched the world's first Sanskrit teaching app under what name? So answer is Little Guru app. Important है, हमें याद रखना है Little Guru app
भारत का और दुनिया का पहला संस्कृत शिक्षण ऐप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज किसने AICTE लीलावती अवार्ड 2020 प्रदान किए? Who conferred AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020? So answer is Educational Minister of India रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज किस राज्य में स्थित वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने WIT और वुमेन हेल्थ कोलिएशन पुरस्कार जीता है? वॉचलैंड और वॉलचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन विच स्टेट वॉन दी WIT वुमेन हेल्थ कोलिएशन अवार्ड? सो आंसर इज महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, महाराष्ट्र के वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने WIT वुमेन हेल्थ कोलिएशन अवार्ड जीता है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज किसने भारत की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका लॉन्च की है? Who launched India's first online dispute resolution handbook? So answer is नीति आयोग। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख अरुण कुमार का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? How many months was the tenure of Arun Kumar, the head of the Ministry of Civil Aviation, extended? So answer is 6 months. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अरुण कुमार जी जो है ये नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज किस देश में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए INS सर्वेक्षण को तैनात किया गया है? इन विच कंट्री INS सर्वेयर वॉज डेवलप्ड और डिप्लॉयड to conduct joint hydrographic surveying? So answer is Mauritius. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज किस देश में भारतीय बिजनेसमैन MA यूसुफ अली को शीर्ष नागरिक पुरस्कार दिया गया है? इन विच कंट्री इंडियन बिजनेसमैन MA यूसुफ अली वॉज गिवन द टॉप सिविलियन अवार्ड? सो आंसर इज UAE और यूनाइटेड अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र अमीरात का बेस्ट सिविलियन अवार्ड और टॉप सिविलियन अवार्ड जो है MA यूसुफ अली जो कि केरल के बिजनेसमैन है इन्हें दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज सतीश कौल का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? सतीश कौल हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो आंसर इज ही वाज एन फेमस एक्टर, वह एक बहुत ही प्रचलित अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंडिया नीदरलैंड्स वर्चुअल समिट? सो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, PM नरेंद्र मोदी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बारी बारी से आते रहते हैं। सो PM नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंडिया नीदरलैंड्स वर्चुअल समिट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज विश्व में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला देश कौन सा बना है? सो आंसर इज सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला देश जो है सिंगापुर बना है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो वो बिकेम द लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटिंग कंट्री RCEP इन द वर्ल्ड? सो आंसर इज स्टेट सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, कंट्री सिंगापुर बिकेम द लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटिंग कंट्री RCEP इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹726 करोड़? सो आंसर इज मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश इज भोपाल एंड CM ऑफ मध्य प्रदेश इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज किस देश ने 85 दिनों में 10 करोड़ लोगों को COVID-19 वैक्सीन लगाई है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड द COVID-19 वैक्सीन to 100 million people in 85 days? So answer is India. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन। सो आंसर इज फेमस एक्टर सोनू सूद।
इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 38। केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोक लगाई है? द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ विच ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना? सो आंसर इज रेमडेसिविर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। रेमडेसिविर इज प्रोहिबिटेड और बैंड इन द एक्सपोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। एसबीआई बैंक ने 5 सालों में शून्य बैलेंस खातों में कितने रुपए एकत्रित किए हैं? हाउ मैनी रुपीज SBI बैंक कलेक्टेड फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट्स इन दी 5 years? सो आंसर इज 300 करोड़ रुपीज। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। 300 करोड़ रुपए शून्य बैलेंस खातों से जो है एकत्रित किए हैं SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 5 सालों में। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि आज 13 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे वो हमने बारी बारी से डिस्कस कर लिए हैं। सो गाइज, आप इन्हें लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं। सो आप इन्हें रेगुलर पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। सो गाइज, आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।